Hello, welcome students, and today in this video I will teach you about the gender and what a gender is really, and gender is directly related with the noun words. And in this video we'll discuss about the gender, how many types of genders are there and how it is defined and is distinguished. Okay, let's start. And you know that living beings are of either the male or the female sex. Now compare the words in the following pair: boy, girl, lion, lioness, hero, heroine, cock sparrow, and hen sparrow. So in this, one is boy, lion, hero, cock sparrow. These are of something different type of words, and second type, girl, lioness, heroine, and hen sparrow. And do you mark any difference in the both? And this boy and girl, lion and lioness. So mark it. And what do you notice here? The first word of each pair is the name of a male animal. The first word. This is the first word: boy, lion, hero, cock sparrow. So all these first words of each pair is the name of a male animal. ये सब जो है male animal का names है. Okay, these are the names of the male animal. And then the second word: girl, lioness, heroine, and hen sparrow. And these two words, the second word of each pair is the name of a female animal. ये जो है फीमेल एनिमल का नाम. हियर एनिमल इज यूज फॉर एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड विथ सेक्स. ओके, मेल सेक्स और इट बी फीमेल सेक्स. सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स. ये जो बॉयज है, यहाँ जो एग्जांपल्स दिया गया है, इसमें पहला ग्रुप में जो है बॉय, लायन, ये सब मेल एनिमल से रिलेटेड है, और सेकेंड टाइप का जो वर्ड, सेकेंड वर्ड्स है, ये सब फीमेल सेक्स से रिलेटेड है. ओके, ये दो ग्रुप का वर्ड्स हम लोग को डिस्टिंग्विश मिल गया. सो दैट अब आता है कि ये जो नोटिस किया गया कि यह दो टाइप का मिला वर्ड्स, इसमें क्या डिफरेंस है. सो द वर्ड जेंडर, ये जो जेंडर वर्ड्स है, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड जेनस, GENUS, जेनस, एंड इट मीन्स काइंड और सॉर्ट. ओके, प्रकार को ही समझाता है, किस प्रकार से है. सो दैट लेट्स डिस्कस द नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल, or that be the female sex, is said to be of the masculine gender. Okay, and the first type of gender here you know is masculine gender. That is the noun, कोई भी नाउन जो कि डिनोट करता है, किससे डिनोट करता है? मेल सेक्स को डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है. इज सेड टू बी ऑफ द masculine gender. Like for example, boy, lion, hero, cock sparrow, all these are the noun words that denoting the male sex. So all these two words are masculine gender. The first type of gender is masculine gender, that is male gender. Male animals male sex से related है, उसको masculine gender बोला जाता है. And then come to the second type, the second group. So a noun that denotes a female animal or that a female sex is said to be of the feminine gender. The female animals or the female sex are known as the feminine gender. The first one is masculine and second type is feminine gender. So what are the examples? Girl, lioness, heroine, and hen sparrow. All these denote the female sex. So that all these nouns are feminine gender. Okay, then come to the third type. ये तो दो टाइप का हो गया, एक मेल से रिलेटेड हो गया और एक फीमेल से रिलेटेड हुआ, एक मस्कुलाइन हुआ and second time is feminine gender हुआ. Then come to the third type of gender, and which type of gender is, and that be a noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. ये क्या है? एक कॉमन जेंडर जो कि दोनों जेंडर को सूचित करता है. जैसे कि नाउन दैट, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि बोथ इधर मेल को भी समझाया जाता है. आप उस वर्ड को यूज करेंगे तो मेल फीमेल बोथ को समझ सकते हैं हम लोग, बोथ आ सकते हैं उसके अंदर, जो मीनिंग है डिफाइन करते हैं. इससे टू बी ऑफ कॉमन फैक्टर, सो दैट जो कॉमन होता है दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन है, सो दैट इट इज नोन एज द कॉमन जेंडर. इसको कॉमन जेंडर बोला जाता है. एज
फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, चाइल्ड, यहाँ पेरेंट कर सकते हैं, चाइल्ड, फ्रेंड, पीपल, सर्वेंट, थीप, रिलेशन, एनिमी, कज़न, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, इन्फेंट, एक्सेट्रा। ये जो एग्जांपल्स है इसमें से आप फ्रेंड बोलेंगे तो ये मेल या फीमेल किसी को भी समझ सकते हैं हम लोग, और मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड जो है वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। आपके कजन्स जो है मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एनिमी भी सेम हो गया। पेरेंट्स जो बोलते हैं मेल फीमेल बोथ हो के ही पेरेंट्स बोला जाता है। सो दैट एनीथिंग कोई भी हो सकता है ये दोनों सेक्स से। सो दिस ऑल द वर्ड्स और द नाउन वर्ड्स कम्स अंडर द कॉमन जेंडर। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये दो टाइप का, पहला हो गया मेल सेक्स से, जो हो गया मस्कुलिन जेंडर। सेकेंड टाइप फीमेल्स एनिमल्स जो होता है फीमेल सेक्स से रिलेटेड है, वो फेमिनिन हो गया। और बोथ को जो डिनोट करता है वो हो गया कॉमन जेंडर। ओके, फोर्थ टाइप, ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग, ए नाउन दैट डिनोट ए thing that is neither male nor female is said to be of the neuter gender। जो ना कि फीमेल है ना मेल है उसको न्यूटर जेंडर बोला जाता है। ओके, तो सब एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक है, इसका ना मेल फीमेल हम लोग सेक्स नहीं बोल सकते। पेन, पेंसिल, रोम, ट्रीज, ये सब का क्या हम लोग सेक्स डिनोट नहीं कर सकते। सो दैट ये सब किसके अंदर आता है, ये न्यूटर जेंडर पे। So the noun, the definition of neuter gender, the definition is a noun that denotes a thing that is neither male nor female is said to be of the neuter gender। Okay, so let's student हम लोग define करते हैं अभी कि we should define the things and it will be thought seen that in modern English पे क्या होता है, gender of a noun is entirely matter of sex or absence of sex। जो मॉडर्न इंग्लिश पे क्या होता है, जेंडर कम्प्लीटली सेक्स से रिलेटेड है या फिर एब्सेंस ऑफ सेक्स से हो गया। सेक्स है तो मेल फीमेल मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन हो गया, या फिर बोथ हो गया तो कॉमन हो गया, एंड एब्सेंस ऑफ सेक्स से रिलेटेड हो गया न्यूट्रल जेंडर। ये जो मॉडर्न इंग्लिश दैट कम्प्लीटली रिलेटेड विद द जेंडर, सेक्स और एब्सेंस ऑफ सेक्स। ओके, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ ए नाउन। नाउन के फॉर्म से कोई रिलेशन इसका नहीं है। एंड विच डिटरमाइन इट्स जेंडर इन मेनी अदर लैंग्वेज, जैसे कुछ लैंग्वेज है, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, उसमें फॉर्म से भी लेके हम लोग जेंडर डिफाइन करते हैं, जो कि बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ओके, लेट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट थिंग्स हियर। सो एंड इन इंग्लिश इट इज ओनली द मैटर ऑफ जेंडर, सेक्स एंड एब्सेंस ऑफ सेक्स। एंड देन अनदर टाइप ऑफ केसेस हियर ऑल्सो इन इंग्लिश में भी कुछ कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि पोएट्री पे, स्पेशली इन पोएट्री एंड ऑल्सो इन प्रोज या पोएट्री पे केसेस भी होते हैं जो पोएट्स स्पेशली यूज करते हैं, राइटर्स यूज करते हैं। दैट इज नॉन एज द इन केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। एंड व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए पर्सन डिस्क्राइब करना। एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, जिसका लाइफ नहीं है, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सनिफाइड, इसको क्या किया जाता है, अपर्सनिफाइड किया जाता है। दैट इज नॉन एज पर्सनिफिकेशन। पोएट्री पे ही स्पेशली होता है। दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग्स। पोएट क्या करते हैं, पोएट्स उनके पोएट्री में कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ओट हो गया, ओट पे या सोनेट पे क्या करते हैं, कोई भी किसी जगह पे, जैसे स्काई हो गया, कोको हो गया, स्काई हो गया, और कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको एक पर्सन के हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं या कंपेयर करते हैं। एंड वी देन रिगार्ड देम एज मेल और फीमेल, हम लोग उसको मेल या फीमेल हिसाब से डिस्क्राइब किया जाए। सो यह बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्वेश्चन होता है कि आप मेल किया जाएगा उसको ऑब्जेक्ट को या फिर फीमेल किया जाएगा। सो दैट द सिंपल डेफिनेशन इज हियर एंड हाउ द इंग्लिश ग्रामर द डिफाइन ऑल दिस थिंग्स। द मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर किस किस को लिया जाता है, अ जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट एंड व्हिच आर रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। स्ट्रेंथ और वायलेंस को जिस वर्ड्स ऑब्जेक्ट या नाउंस रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ और वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसको क्या करते हैं या फिर डिनोट्स करते हैं, रिमार्केबल अप्लाइड किया जाता है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाइड किया जाता है उसको मस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द सन को क्या हम लोग स्ट्रेंथ के लिए ही माना जाता है। समर सीजन भी सेम टू सेम वायलेंस एंड स्ट्रेंथ के लिए माना जाता है। विंटर भी सेम टू सेम कंडीशन, टाइम और डेथ भी ऐसे ही होता है, स्ट्रेंथ और वायलेंस के लिए ही जाना जाता है। सो दैट ये सब है मस्कुलाइन जेंडर पे ही आते हैं। बस सेकेंड टाइप क्या होता है जो फीमेल होते हैं, दैट इज फेमिनाइन जेंडर से अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी
जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। ये जो 3 क्वालिटीज़ है, ब्यूटी से रिलेटेड हो गया, जेंटलनेस से हो गया या ग्रेसफुलनेस, ये जो 3 क्वालिटीज़ को अगर रिप्रेजेंट करता है कोई ऑब्जेक्ट, वो सब जैसे कि द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, नेचर, प्रकृति जो है, ये सबको हम लोग ब्यूटी के हिसाब से या जेंटलनेस उनके क्वालिटी जो है उसके हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। So I think these are all about the gender. Okay, students. So this is most common in poetry, but certain nouns are personified in prose. Prose पे भी होता है ये सब. So that all about the things are. This is all about the gender, and it is clear. And also, for the second time I also repeat. So for once again I will revise all the things. So the word gender comes from the Latin genus, which means kind or sort, जो कि हम लोग kind डिफाइन किया जाता है, kind या प्रकार से डिफाइन करते हैं। जो मेल रिप्रेजेंट करता है, the noun that denotes a male animal, sex is known as masculine, second time is feminine that represent the female, and those two words which denote a noun to denote either male or female, those are known as the common gender. Those are in common gender. And fourth one is the neutral gender, neither male nor female. Thank you students for watching the video, and if you till now if you have not subscribed, then please subscribe and like for the new updates. Okay, thank you.